صرف ایک منٹ. کبھی سوچا آپ نے کہ کیا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں کہ جو خرابیاں ان میں ہیں وہ ساری کی ساری خرابیاں ان کے گھر والوں میں بھی آ جائیں, ان کے بچوں میں بھی آ جائیں, ان کے عزیزوں رشتہ داروں میں بھی آ جائیں. میرا مطلب یہ کہ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی ہیروئنچی ہے تو کیا اس کی خواہش ہوگی کہ جب پلیا کے نیچے جائے اپنے دوستوں کے ساتھ چادر اوڑھ کے ہیروئن پینے کے لیے تو ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی ہوں اور ان کو ساتھ ساتھ کش لگوا رہا ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. میرا بھی خیال ہے کہ ہونا نہیں چاہیے. یا فرض کیجیے اگر کسی کو کوئی لت پڑ جائے گٹکا کھانے کی اور جس سے اس کو معلوم ہے کہ رفتہ رفتہ ماؤتھ کینسر سے بڑھ رہا ہوں, کبھی سوچا آپ نے کہ جب وہ گٹکا کھانے بیٹھے تو اپنے بچے کے بھی منہ میں تھوڑا سا گٹکا ڈال دے کہ بیٹا تو بھی مزے کر میری طریقے سے؟ نہیں ہوتا نا, نہیں ہو سکتا یہ. اور تو اور کبھی ایسا ہو جانے کہ ہمارا کوئی دوست ہمارے پاس آ جائے اتفاق سے جو زبان کے معاملے بہت ہی غیر محتاط ہے کہ خدا نخواستہ لطیفوں کا دور شروع ہو تو کب وہ کسیفوں پہ اتر آئے گا اور کب وہ غریزوں پہ اتر آئے گا آپ پیشگوئی نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ کبھی چاہیں گے کہ بچے بھی اس محفل میں بیٹھے ہوں جہاں کوئی بے تکلف دوست بڑے بےہودہ قسم کی بات کر رہا ہو؟ نہیں نا. ایک عقل میں آنے والی بات یہی ہے کہ ایک آدمی جو کہ کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے کم سے کم اتنا تو اس میں بنیادی احساس ہوتا ہے, حس ہوتی ہے کہ اب یہ برائی میرے ساتھ ہی رہے اور میرے ساتھ ہی ختم ہو جائے, لیکن میرے بچوں میں میرے گھر والوں میں یہ والی برائی نہ آ سکے. خواہش ہوتی ہے نا ننے ننے سی. البتہ ایک چیز یقیناً ایسی ہے کہ جس میں میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا زہر ہے لوگ بڑی کوشش کے ساتھ اپنے گھر والوں میں, اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں. جی ہاں, زہر منتقل کرتے ہیں اپنی بیوی میں اور اپنے بچوں میں. یہ کون سا زہر ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ یہ تکبر کا زہر ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی ایسی پوزیشن دے دی ہے جہاں پر آپ صاحب اختیار ہیں, جہاں آپ صاحب اقتدار ہیں, جہاں آپ کا سکہ چلتا ہے, تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کی پوزیشن کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے بہت سی مراحت حاصل کرتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی اور گھر والوں کو بھی ایسے ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو آپ کی اپنی غیر معمولی مراحت جس کے آپ حقدار نہیں تھے وہ صرف آپ کا حق نہیں بلکہ ان کا بھی حق ہے. ہم براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ تم اشرافیہ کے ہو, تم ہمارے بیٹے ہو, لہذا تم تھوڑا مختلف ہو دوسروں سے, تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. بات اگر یہیں تک ہوتی تو کوئی محدود نہ تھا, مسئلہ اس سے آگے جاتا ہے اور آگے یہ کہ وہ تمام کے تمام ناجائز اختیارات جو ہم استعمال کرتے آئے ہیں ہماری اولاد بھی اسے اپنا حق سمجھنے لگتی ہے. اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ ایسے کلپس دیکھے ہوں گے جہاں کوئی بچہ پارکنگ والے سے لڑ رہا ہے, بچے کی عمر ہوگی 5-6 سال, 3000 سی سی کی 4 ویلر سے اترا ہے وہ, اور پارکنگ والے کے اوپر وہ غصہ دکھا رہا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے بھی پارکنگ فیس مانگ دیں گی, تم کو پتہ نہیں اسٹار گاڑی ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر کہیں اتفاق سے بیرر لگا ہوا ہے تو وہاں وہ خاتون جو خود کرنل نہیں لیکن کرنل کی بیوی ہیں وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہیں, لاتے مار مار کے ڈرم ہٹاتی ہیں, گالیاں بکتی ہیں, کہتے تم کو معلوم نہیں میں کرنل کی بیوی ہوں. یہ ملک تو چلا رہے ہیں بیویاں اور بچے ان اختیارات کے سہارے جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو سربراہ کنبہ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اس چیز کو ایجاد دیتے ہیں بلکہ اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں کہ کیسے کوئی میرے بیوی یا بچے کے بارے میں, اس کے استحقاق کے بارے میں سوال اٹھائے جو میرا استحقاق ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ کسی جج صاحب کی بیگم کو اتفاق سے فلائٹ میں جگہ نہ مل سکی تو اگلی صبح کورٹ سے نوٹس آ گیا کہ توہین عدالت
का इल्जाम है आपके ऊपर, आइए और जैसा आपको जवाब दीजिए, उनकी बेगम को कैसे आपने जहाज में फ्लाई करने से रोक दिया। ये चीजें अब हमारे मुआशरे में सराहियत करती जा रही हैं और हम ये समझते हैं कि सब चीजें हैं ये हमेशा रहेंगी, और चूंकि हमेशा रहेंगी लिहाजा ये हमारा हक, हमारे बीवी बच्चों का हक कि वो इस अथॉरिटी को इसी तरीके से एक्सरसाइज करें और उनको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है मेरे इस पोजीशन की वजह से। बात निकलती है तो फिर दूर तक जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक चश्मदीद वाक़या सुनाऊंगा। कोई 15-16 साल पुरानी बात है कि मैं एक दफ्तर के काम के सिलसिले में एक टेक्सटाइल मिल में गया था और वहाँ उनके डायरेक्टर से मेरी मुलाकात थी, मीटिंग थी। जब हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो इतनी देर में एक बच्ची एंटर हुई। उसकी उम्र हार्डली 6-7 साल रही होगी और गालबन वो प्रेप वगैरह में होगी। उसके साथ साथ उसका बूढ़ा ड्राइवर भी था, सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल, उसके कांधों के ऊपर स्कूल बैग लदा हुआ था। अब जो गुफ्तगू अचानक इंटरप्ट हुई तो मैं देख रहा था कि इस पे क्या रिएक्शन होता है, लेकिन फिर जब मुझे उस बच्ची की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी तो मैं हैरान रह गया। वो बच्ची छोटी 6-7 साल की, जिसने भी मॉनिटरिंग जाना शुरू किया था, बड़े तहक्कुमाना अंदाज में उस बूढ़े ड्राइवर को बहुत गुस्से से साथ कह रही थी, ड्राइवर साहब का ब्रीफकेस उठाओ। मैं अपने मेजबान की तरफ देखने लगा और उनके ऊपर कोई असर भी ना हुआ और उन्होंने सिंपल अपना इशारा कर दिया ड्राइवर को कि ये इधर ब्रीफकेस रखा हुआ है। हम लोग इस उम्र से अपने बच्चों के जहन में तकब्बुर के इंजेक्शन लगाते हैं, दानिस्ता, ताकि उनको वो मुकाम मिल सके जो मुकाम हमने ले लिया है। ज्यादातर मैंने देखा है कि ये सारे मसाइल खराब होते हैं टोन फ्रॉम द टॉप के। अच्छे अच्छे बड़े बड़े मैंने दफातर देखे हैं जिनके यूं अगर देखा जाए तो अफसरान किराम बहुत ही नफीस भी थे, लेकिन सवाए मस्जिद के कोई तसव्वुर नहीं था कि छोटा और बड़ा एक साथ खड़ा हो सके। खाना अलग अलग खाया जाएगा, जहां साहब लोग खाएंगे वहां पे नीचे के लोग नहीं खाएंगे। गाड़ी अलग अलग होगी। हद तो यह है कि टॉयलेट अलग अलग होंगे, जहां साहब लोगों का टॉयलेट होगा वहां पे फिर नीचे के क्लर्क लोग नहीं जाया करेंगे। क्यों? आखिर अगर वो सिर्फ बोर्ड हटा दें कि कौन सा साहब लोगों का है और कौन सा दूसरों का, तो दोनों का मेयार एक ही जैसा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं होता है। तो मेरा आज का पैगाम ये है कि ये टोन फ्रॉम टॉप है, और अगर आप किसी इदारे में किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं तो तकब्बुर को खुद से दूर रखें और तकब्बुर को अपने बच्चों से भी दूर रखें। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह था जलालुद्दौला, वो शिकार खेलने गया किसी दूर दराज इलाके में, और वहां फिर उसके जो होता है दस्तूर के खेमे सारे लग गए और बादशाह अपने चंद सिपाहियों को साथ लेके शिकार के लिए निकल गया। आगे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा वहां पे खड़ा रो रहा है, बड़ा धाड़े मार मार के रो रहा है। तो बादशाह ने पूछा कि मसला क्या है। तो उसने बताया कि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास किसी किस्म का कोई खाने पीने का सामान नहीं है, बड़ी मुश्किल से खरबूजे मैंने उगाए थे और आज ख्याल था कि खरबूजों को ले जाके मैं बेचूंगा मंडी में तो 4 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ नौजवान 3 नौजवान आए और उन्होंने मेरे जितने खरबूजे मैंने तोड़ के रखे थे बेचने के लिए, सारे ज़बरदस्ती खरबूजे मुझसे छीन के ले गए। मैंने रोकता भी रहा कि देखो ये मेरी दाल रोटी है, इसे मुझसे न छीनो, लेकिन वो मुझसे छीन के रह गए। बादशाह ने कुछ देर गौर किया और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा सा आगे चले आओ, मस्जिद के सामने सीधी सड़क में जरा आगे जाओगे तो तुम देखोगे कि वहां बहुत सारे खेमे लगे हुए हैं और एक उसमें तुम्हें दरमियान में सुर्ख खेमा नजर आएगा। तो तुम ये करना कि सुर्ख खेमे के बाहर बैठकर मेरा इंतजार करना, मैं फारिग हो गया आता हूँ। उसने यही किया, बेचारा जाके बैठ गया इंतजार में। फिर थोड़ी देर बाद जब वो बादशाह आया तो उसको फिर मालूम हुआ कि मैं जिससे मुखातिब था वो बादशाह था। फिर बादशाह ने उसको अपने दरबार में बुलाया और फिर वहां बैठकर उसने अपने मुशीरों और वजीरों से कहा कि काम भी होता रहेगा और खाना भी होता रहेगा, इस वक्त जरा
खरबूजे खाने को दिल चाह रहा था। देखो अगर कहीं करीब से कहीं से अगर खरबूजा मिल जाए, क्योंकि शहर जाके लाना तो बड़ा मसला होगा, तो पता करो अगर कहीं से मिल जाएंगे खरबूजे तो थोड़ा मैं इनाम इकराम भी दे दूंगा। सब दौड़ लिए और एक साहब खरबूजे लेकर हाजिर हो गए। पूछा कि इतनी जल्दी कहाँ से ले आए, शहर तो बहुत दूर है। उसने खुशी से बताया ये कि मेरे 3 बेटे आज ये खरबूजे लेकर आए थे, और जब मैंने उनको बताया कि बादशाह ने इनाम व इकराम रखा है उसके लिए जो खरबूजे देगा, तो ये कहकर मैंने उनसे खरबूजे ले लिए और अब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बादशाह ने जोर से हुंकारा भरा। 3 बच्चे खरबूजा लेकर आए थे। तो उनको पता है वो 3 बच्चे किसके खरबूजे छीन कर लाए थे। वो ये फरियादी बैठा हुआ है जिसके खेत से वो छीन कर लेकर आए थे। जाओ अभी जाकर उसे लेकर आओ पकड़ के, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो बेचारा बौखलाया हुआ गया और उसको मालूम था कि बादशाह इतने सख्त मिजाज का है कि अगर किसी उसके नजदीकी आदमी से कोई गलती हो तो कभी बचता नहीं है, उसको हमेशा निशाने इबरत दिला देता है। घर जाके उसने चाहा कि उन लड़कों को ले साथ में, तो इत्तला तो पहले ही पहुंच गई थी और वो सारे लड़के वहां से फरार हो चुके थे। वजीर फिर आया बादशाह के दरबार में रोता पीटता और कहने लगा साहब मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक है कि वो तीनों इस वक्त घर पे नहीं थे। पता नहीं कहाँ गए, किसी को पता नहीं, और पता नहीं कब जाएंगे, किसी को पता नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए और ये मेरा आपसे वादा है कि जैसे ही मिलेंगे मैं उनको लेके आपके दरबार में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने वजीर को और उस फरियादी को दोनों को अपने करीब बुलाया। वजीर का हाथ पकड़ा और फरियादी के हाथ में दिया और कहा यह कि अफसोस कि मैं तुम्हारे खरबूजों का इंसाफ तुम्हें न दिला सका। हाँ, मैं ये कर रहा हूं कि आज से ये वजीर तुम्हारा गुलाम है और ये गुलाम बनकर उस वक्त तक तुम्हारी खिदमत करता रहेगा जब तक कि तुम्हारे मुजरिम पकड़ के सामने हाजिर न कर दी जाए। फिर से फरियादी को डांटा कि देखो अगर ये तुम्हारा गुलाम तुमसे कहीं फरार हुआ और तुमने आके बताया जी भाग गया, तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। इस गुलाम को गुलामों की तरह रखना है। वजीर बाहर निकला, समझ तो हो गया था। फिर उसने बड़ी खुशामद की कि मैं तुमको 300 दीनार दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो की सूरत से। तो फरियादी बादशाह के पास गया और उसने कहा जान की अमान पाऊं, उस जो गुलाम आपने मेरे हवाले किया था उसके दाम लग गए हैं, कोई मुझसे वो गुलाम 300 दीनार में खरीद रहा है। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपना वो गुलाम उसके हाथ फरोख्त करके 300 दीनार ले लूं, कुछ मेरी ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। बादशाह मुस्कुराया और बोला हाँ ठीक है, अब सही है, इजाज़त है, तुम अपने गुलाम को 300 दीनार में बेच दो। तो कहने का मतलब ये था कि जनाब कम से कम इतना शऊर हमें होना चाहिए कि हमारी क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। हम खुद से झूठ ना बोलें, हम अपना तजिया खुद कर लें कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी आदतें हैं जो गलत हैं। फिर अगर कोई दिल से आवाज़ आती है कि मेरी ये आदत गलत है, तो खुदा के लिए उसको अपने बच्चों में मुंतकिल ना होने दें। ये तकब्बुर, ये क्लास कॉन्शियसनेस, ये एक जहर है जो मुआशरे को खा रहा है। ये वो दीमक है जो हमारी सोसाइटी खा रही है। अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इस तकब्बुर से बचाए और अपने बच्चों को इस तकब्बुर के नज़दीक ना आने दें कि वो ये कहें कि मेरा बाप चूंकि इतने बड़े इदारे का सरबराह है, लिहाजा उसके सारे नौकर मेरे नौकर, उसकी सारी गाड़ियां मेरी गाड़ियां। यह चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।